हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीविज़ार्ड बीएयू। टुडे हम लोग एक वीडियो के साथ आए हैं जिसमें साक्षी हमें बताएंगी कि उन्होंने अपना जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जैट कैसे दिया, क्या क्या उनका स्ट्रैटेजी था, क्या क्या बुक्स फॉलो किया उन्होंने। तो ये सब के साथ वो हमें ब्रीफ में सब चीज़ बताएंगी। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सबके लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर दबाएं और लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि अब आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप हमारे साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर अपडेट्स भी ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम साक्षी टू आवर चैनल। Thank you so much, sir. एंड I'm delighted to be here. and big congratulations on your achievement. Thank you so much. We would like you to begin with a short introduction about yourself. Okay, so I'm Sakshi. I'm actually currently in 8th semester in Ranchi Agriculture College of Vista Agriculture University. I attempted CAT 2020 and ZAT 2021 for the admission in the MBA courses of 2021. So results were out somewhere in Feb and March, and then interviews were conducted. And now the final results are out, and I've been offered admission to XLRI, which few of you might be aware that it's among the top 10 MBA colleges of India. So I'm quite happy to be joining that. So Sakshi, tell us something about the strategy to crack this exam JET और मतलब जो पूरा कैट का या फिर जो जेट का तैयारी Hmm. तुमने स्टार्ट की वो कब स्टार्ट की जैसे कि एग्जाम Uh, एज यू आर इन बीएससी एजी इन रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, तो कब hmm. तुम्हारे दिमाग में आया कि अब हमको कैट या फिर जो एमबीए के लिए तैयारी करना है, और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे, मतलब क्या उसका मोटिवेशन क्या था? Yes, so as I was studying, जब मैं थी एग्रीकल्चर में, I was in second year and I was trying to figure out क्या करना है अब आगे. So because NEET was an option which was gone long back, so I had to think something for future. So when I was going through various subjects in agriculture, I talked to many seniors and many teachers, and they all suggested that उस subject में पढ़ो जो तुम्हें सही में पसंद हो. And I tried figuring कि मुझे क्या पसंद है, and sadly I could not come up with any या subject. But then I was thinking कि कुछ तो होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी जिन्हें कोर सब एग्रीकल्चर नहीं पसंद, because I know there might be a few who may not like core subjects of agriculture. Not to demean any course, not to demean agriculture as a course. There are many students in general also. Engineering में बहुत ऐसे students होते हैं जो they do not like what they study in their graduation. They hate it to the core, to be honest. So similar was my case. I was not very much interested in the core subjects like agronomy and pathology, but at the same time मेरे को agriculture, economics, and agribusiness management, I really like those subjects. And obviously those were very good scoring subjects as well, and it interested me. Those subjects really interested me. So then I decided, okay, I will be pursuing these subjects. Then when I was thinking कि अब क्या करना है इस subjects में, agriculture economics was an option, which was a very good option. Agribusiness management was an option, which is again a very good option. Then there was MBA. So after a lot of thought and deliberation, I decided to go for MBA because I wanted something of a general degree which could help me, make my option range wider in the future. So that was my thought process when I started the preparation. And when I started preparation, I obviously started with googling where how to study, what is the syllabus, and then I came to know syllabus actually में बस दो ही subject main होता है, maths and English. That's it. So again, it was not very difficult to start with. But maths में the level of CAT and ZAT is actually tougher than what we find in bank or any other exams. And English also the level is quite tougher. If you या see at the question paper, जो RCs होते हैं, जो भी questions होते हैं maths के, वो उनको समझ पाना ही actually is a big task, let alone solving them. So that was a big challenge क्योंकि मेरा maths नहीं था 11th 12 में, and I had this very big misconception कि यार मेरा तो maths नहीं है, how will I solve इतने tough questions, because the level is actually quite difficult. तो फिर आई एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि फिर मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या था, आई एक्चुअली शुरू में तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देख के अपने बेसिक्स क्लियर करे. तो होता है एक्चुअली स्टार्ट अप टू 8 क्लास या 10 क्लास का ही मैथ्स होता है, बट लेकिन वो जस्ट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज टफर. तो
वापस से वो सब वापस से याद आ जाए कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, कंसेप्ट्स क्या होते हैं. आई स्टार्टेड विथ यूट्यूब वीडियोस फर्स्ट, एंड देन आई एडवांस माय प्रिपरेशन विथ रिकमेंडेड बुक्स फॉर कैट लाइक अरुण शर्मा एंड ऑल. So that was my preparation strategy for CAT and that, Yeah. and my motivation behind it. So Sakshi, you told about your strategy very Okay. nicely, and you classified also what problems you came across while preparing for that and CAT. So I would like you to explain to our audience what is exactly the exam pattern for that. Okay, so there are many MBA exams to begin with. CAT and XAT are like the main exams. So CAT may there are three sections. One is maths, which is called QA. Then there is LRDI, which may they ask basically logical questions, logic basis question. And third is English, which is called VARC in CAT. And in XAT again there are three sections, but it is a little bit different. First being the QA and DI, which is basically maths. Second is the VRC, which is again same like with that. But the third one is decision making. उसमें क्या होता है, we are given situations कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप अगर इस सिचुएशन में हो, एंड उसमें एंड जो ऑप्शन होते हैं इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो उसमें क्या होता है, लोगों का चेक होता है कि प्रेशर में हाउ विल दे परफॉर्म इन फ्यूचर. मतलब अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, हाउ विल दे परफॉर्म, बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर. So they want to check that कि आप क्या डिसीजन लोगे at the critical stages. So वो थर्ड सेक्शन होता है which is very very crucial actually, and people don't give that much attention to that section. But that's the third section of that. So this is the sum up of all the three exams. Hello, All the three Sakshi. exams. Name the book you refer for CAT and JET. One book which is very very common is Arun Sharma. Whoever is preparing for CAT might know. Arun Sharma is considered like a bible for CAT preparation. Then second one is Normal Lewis ka Word Power Made Easy. It is for increasing the vocabulary. So it is again very good. And along with it, I also refer to Farrell Onchek's study material, which is again optional. You can do it if you wish to. And one more, another thing which I will highly recommend is हिंदू के एडिटोरियल, हिंदू न्यूज़पेपर, उनके जो एडिटोरियल सेक्शन होते हैं, इट इज वेरी 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 गुड. vocab is fantastic, न्यूज का क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, एंड उसे जो उन्हें जो लिखते हैं एडिटोरियल पे, दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस एडिटर्स. सो आई मीन यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट. सो दैट विल बी माय सजेशन टू रीड हिंदू के एडिटोरियल. लोगों को डाउट रहता है कि कैट लिखे कि जेट लिखे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कैट और जेट में? दोनों लिख सकते हैं सर, दोनों में मैथ्स और इंग्लिश ही पूछा जाता है एसेंशियली. बस जैट में डिसीजन मेकिंग एक्स्ट्रा रहता है, वरना आप दोनों लिख सकते हो. ऐसा बोला जाता है कि जैट का मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा टफ रहता है कैट से, लेकिन अभी जैसे जैसे ईयर्स पास हो रहे हैं लेवल ऑलमोस्ट अब सेम ही हो चुका है. इफ नॉट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा. मैंने तो लोगों से सुना है कि कैट ज्यादा हार्ड रहता है एज कम्पेयर टू जेट. Yeah, actually CAT में क्या होता है ना, number of applicants are more. So and to clear IIM is actually difficult if you are focusing for IIM A, B and C, क्योंकि वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा competition होता है. ZAT में थोड़ा कम हो जाता है because again number of colleges are less in ZAT. So इसलिए people might say, but the level of difficulty of questions people consider ZAT to be tougher. But again, I mean it's more or less the same now. So और दूसरी चीज में हम लोग कैट और जेट कितनी बार देख सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है या No, I don't think that. नहीं कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि I mean we have people in our batch जो लोग अभी सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग मतलब बहुत ज्यादा एज के भी हैं. I mean 1993 बॉर्न्स भी मेरे बैच में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अटेम्प्ट का कुछ नहीं है, लोग देते रहते हैं. एंड इनफैक्ट जो हमारे टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, अरुण शर्मा फॉर एग्जाम्पल, हु इज द पायनियर ऑफ एवरीथिंग, सो ही हिमसेल्फ अटेम्प्ट्स कैट टिल डेट just to see the paper. So anybody can attempt कितने भी नंबर बाद. जब टीचर जेट का पैटर्न समझा दिया, लेकिन कैट का पैटर्न क्या रहता है जनरली? कैट का सबसे पहला इज मैथ्स क्यूए, जिसमें कि एक्चुअली अभी नंबर ऑफ मार्क्स चेंज हो गए एंड इट्स नॉट वेरी कांस्टेंट. जैसे इस बार हर बार 3 आवर्स से एग्जाम होता था, सो वी हैड टू हैव 100 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच. पहले ऐसा होता था, लेकिन पिछले साल से ड्यू टू कोरोना दे हैव रिड्यूस्ड द टाइमिंग टू 2 आवर्स एंड दे डिड नॉट एक्चुअली डिस्क्लोज कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो कितने मार्क्स होंगे. एंड एट द एंड दे आई थिंक ended up giving 23 questions each section, making around 60-70 questions overall. So actually it might change this year too because COVID अभी तक गया नहीं है, so it's not very constant. And अभी तक they have not cleared कि इस बार कितने टाइम का होगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, so it is still not very clear.
इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे? So interview MBA के interviews it is all about they want to know if you want to do MBA, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है वो IIM टैग या फिर कोई अच्छे कॉलेज का टैग के लिए MBA कर लेते हैं, या फिर कुछ समझ नहीं आया तो MBA कर लिया। तो दे वांट टू सेग्रीगेट ऐसे बच्चों को, दे वांट टू नो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सही में MBA करना चाहते हैं, जो सही में अपना फ्यूचर देखते हैं इसमें, एंड दे आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। सो मेरा इंटरव्यू वाज अगेन अराउंड इट। तो उसमें मेरे से पूछा था सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में कि व्हाट विल यू डू इफ यू बिकम यू कम एट अ वेरी हाई पोजीशन इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप क्या करोगे, क्या चेंजेस लाओगे, आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे। दे वांटेड टू नो माय थॉट प्रोसेस बेसिकली। उसके अलावा आई हैड अ फ्यू इंटर्नशिप्स आल्सो इन एचआर। आई वांटेड टू डू एचआर इन एमबीए। सो आई हैड अ फ्यू इंटर्नशिप्स, 2-3 इंटर्नशिप मैंने किए हुए थे एचआर में। So they asked questions related to that. They just wanted to know my basically MBA interviews is all about thought process. What you think? क्योंकि MBA actually in general is about thought process, and MBA classrooms are all about discussions and difference in opinion and difference in diversity basically. So वो लोग बस जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो. So it's all about MBA. और वो लोग थोड़ा बहुत if you are from BCom and all then they may ask questions from your background, but लेकिन normally नहीं पूछते, they only want to know if you want to do an MBA. So that's it. Knowledge उन्हें नहीं चाहिए होता है. In fact, as I'm joining Excel, right, one of our professors has already told us that I don't want you to come with knowledge or with a lot of data or facts. I just want you to come with a lot of imagination and a lot of thought process, and I just want to see what you can think and up to what level you can think. So that's what they want in students. साक्षी, जैसे कि मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स और जितने जो सब्सक्राइबर वो जूनियर्स हैं, और जब करियर सिलेक्शन का टाइम आता है कि जैसे कि सबको डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें आगे, कोई रिसर्च ज्वाइन करते हैं कि हम जीआरएफ जाना है, एसआरएफ करना है, उसके अलावा कोई जॉब के लिए जाता है, और कोई कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जेट जितने भी एमबीए के एग्जाम होते हैं वो सेलेक्ट करें, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे हाउ वी कैन डू इट, कि कितना टफ होता है एग्जाम, कैसा पेपर होता है, कैसा जो इंटरव्यू है वो होता है। उसके अलावा भी उसमें एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसके बाद कैट के बाद हम कर क्या सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड इन दिस कॉलेज, तो उसमें क्या होता है कि कैट में और जेट में अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एमबीए करने के बाद उसका क्या ऑप्शन अपॉर्चुनिटी रहता है। तो वो एक क्लियरफाई कर दो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि हम एमबीए करने के बाद किस फील्ड में और किस टाइप का हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा और स्कोप क्या है उसका। यस सर। तो एमबीए का बहुत सारा स्कोप है। एमबीए इज समथिंग जिसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस। और एंड इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सबसे बड़ा ऑप्शन तो इज एग्री बिजनेस। आप कोई भी ऐसे एग्री रिलेटेड कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड इज रूरल मैनेजमेंट, यू माइट बी अवेयर। देन उसके अलावा इफ यू वांट टू गो इनटू कोर एमबीए फील्ड्स, देयर आर मेनी फील्ड्स। फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग, सेल्स, फिर उसके बाद ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया। तो ये सारे बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप इन फील्ड में आप अब कितने भी ऊपर जा सकते हो। हर फील्ड का एक लो जस्ट एंट्री प्रोफाइल रोल है, एंड देन देयर वेरी हाई लेवल फील्ड। जैसे आप एचआर का ही ले लो, अगर आप जस्ट एंट्री मारते हो तो यू मे बी प्लेस्ड इन रिक्रूटमेंट, या एचआर इज बेसिकली, एचआर में क्या होता है, एचआर इज लाइक दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, दे आर दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो वो लोग मेंटेन करते हैं जो भी एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर होता है, जो भी पॉलिसी होता है कंपनी का, वो सब वो लोग बनाते हैं। तो अगर आपने जस्ट ज्वाइन किया तो आपको मे बी यू कैन गेट अ रिक्रूटमेंट प्रोफाइल वेयर यू विल बी टेकिंग इंटरव्यूज एंड विल बी सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द कंपनी, एंड विल बी जजिंग कि ये कैंडिडेट सही है या नहीं कंपनी के लिए। तो वो एंट्री प्रोफाइल हो गया। लेकिन अगेन इफ यू गो अप एंड अप एंड अप एंड यू कैन बिकम द सीएचआरओ ऑफ द कंपनी आल्सो। सीएचआरओ इज बेसिकली जस्ट बिलो द सीईओ ऑफ अ कंपनी। तो वो लोग फिर अगेन दे प्ले अ मेजर रोल इन द पॉलिसी पॉलिसी ऑफ द कंपनी की क्या पॉलिसी बनाए कि एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा हो और कंपनी के लिए भी अच्छा हो। सो एमबीए इज एक्चुअली, एमबीए में बहुत 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 सारे ऑप्शन है। ऐसा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई कैन नॉट पुट अक्रॉस आप ये बन सकते हो, ये बन सकते हो, क्योंकि इट इज नॉट लिमिटेड एट ऑल। आप कुछ भी बन सकते हो। एंड इफ यू, आई मीन, यू माइट नो वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स इन बीएयू इज फ्रॉम IIM Ahmedabad, so he is here in the BPD unit, so because he chose to do it, so there are a lot of option। आप कुछ भी कर सकते हो। there is like, and many people actually go for entrepreneurship after MBA. I've seen so many people from IIM Lucknow or many top colleges, they go for entrepreneurship. It's a very good option, क्योंकि MBA में जाके ना आपको एक तो बिजनेस का फ्रॉम A to Z बिजनेस क्या होता है। उसके अलावा आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं मेनी कंपनीज, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो पास आउट होंगे, बड़े बड़े कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, आपको पूरा नॉलेज हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हो, इट्स अ एडेड एडवांटेज बिकॉज यू नो क्वाइट अ लॉट।
So yeah, again, it is a very good option after MBA. तो ओके साक्षी ओके, आपने थैंक यू साक्षी। साक्षी आपने सब चीज़ बहुत अच्छे से बताया। तो एक वाइंड अप में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या अपने तरफ से ऑडियंस या जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बोलना चाहेंगे, या क्या कोई मिसकंसेप्शन या कुछ भी आप क्लियर करना चाहेंगे? एक मतलब आप फाइनल ओवरव्यू क्या देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? Yes, I have actually a lot of advice for the juniors. सबसे पहला advice is when I was in college, I actually मैंने कभी इतनी importance मतलब I gave importance to exams. I studied for the exams, but actually it's very important to maintain ACATS if you want to pursue MBA क्योंकि वो लोग आपके ACATS देखते हैं. MBA में बस percentile आपने suppose 99 ले आया तो गारंटी नहीं होता कि आपका हो जाएगा. उसके बाद आपने उसको आप वो लोग आपके ACATS देखेंगे, आपने क्या किया लाइफ भर वो देखेंगे. आप आप क्या सोचते हो ऑब्वियसली वो तो देखेंगे। देन आप आपने क्या इंटर्नशिप्स की, आपने क्या जॉब की है, वो लोग एक-एक चीज़ देखते हैं, एक-एक चीज़। तो उसके लिए अगर आप लोग अभी कॉलेज के मैं जूनियर्स को ये एडवाइस दूँगी कि आप अपने कॉलेज के जो मार्क्स हैं, इफ यू कैन इंक्रीज़ इट, इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी गुड क्योंकि इट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर श्योर। उसके अलावा कॉलेज में वन थिंग दैट आई इग्नोर्ड अ लॉट वाज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आई मीन आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन वन टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये क्या होता है ना, इट इज अगेन एडेड एडवांटेज। अगर आपने कुछ किया है ना, इट विल ऐड टू योर सीवी के पॉइंट्स बनते हैं विच इज वेरीफाइड लेटर ऑन। तो इट इज एडेड टू योर सीवी एंड इट इज एडवांटेज क्योंकि बाकी सब लोगों ने मान लो सेम ही चीज किया है तो देयर शुड बी वन चीज जो आपको अलग करे बाकियों से। सो इट इज एन एडेड एडवांटेज फॉर श्योर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया है तो दीज टू थिंग्स। इसके अलावा इफ द क्लासेस आर ऑनलाइन एज जैसे कि अभी ऑनलाइन है तो पीपल कैन गो फॉर इंटर्नशिप्स ऑल्सो। हमारे कॉलेज में बीएयू में बच्चों को उतना पता नहीं है कि इंटर्नशिप्स अलग से भी की जा सकती हैं। तो पर जैसे डीयू के स्टूडेंट्स हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको ये सब पता है, दे आर डूइंग इंटर्नशिप, 4-4 5-5 इंटर्नशिप्स वो लोग करके आते हैं पहले से। बट हमारे कॉलेज में नहीं करते बच्चे, विच इज अगेन आई थिंक वी शुड डू इट। मैंने अभी तक आई थिंक इट इज माई थर्ड इंटर्नशिप आई एम डूइंग राइट नाउ एंड इट हैज डेफिनेटली गिवन मी एन एडवांटेज। आपको पहले तो कंपनी कैसे काम करती है वो समझ में आता है इंटर्नशिप करके एंड थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, सीवी पॉइंट मिलता है। इसके अलावा अगर इट इज पेड तो अगेन you get that extra money, so why not? So internship is a very, I mean, I want to give that advice and these are three advices. And इसके अलावा misconceptions जो मैं दूर करना चाहूंगी is जब मैंने स्टार्ट किया था प्रेप मुझे लगा था कि इतने आईआईटी के लोग भी आते हैं एग्जाम देते हैं, इतने सारे इंजीनियर्स आते हैं, तो एक एग्रीकल्चर का बच्चा आई मीन वेयर डू वी स्टैंड अ चांस? बट इट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। एक्चुअली इट्स अ एडेड एडवांटेज। अगर आप एग्रीकल्चर के हो इट इज एन एडेड एडवांटेज क्योंकि इन एमबीए दे लुक फॉर डाइवर्सिटी, दे वांट पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स ताकि देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन। सो दे वांट दैट डिफरेंस इन ओपिनियन। और वो अगर वो लोग सारे बच्चे इंजीनियर्स ही उठा लेंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो दे वांट पीपल फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो एग्रीकल्चर इज एन एडेड एडवांटेज। एंड उसके अलावा मिसकंसेप्शन वाज अगेन मनी कि एमबीए इतना कॉस्टली है यार, 22 लाख फीस है, 25 लाख फीस है, कहाँ से आएगा? तो अगेन इट्स इट इज नॉट अ बिग ऑफ एन इशू क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप टॉप 25 के कॉलेजेस में जाते हो या फिर टॉप 50 ऑल्सो, तो बैंक आपको सामने से कॉल करते हैं कि यार मेरे से लोन ले लो, मेरे से लोन ले लो। एंड इट इज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस, एक दिन के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है, कुछ नहीं करना होता आपको, आराम से बिना सिक्योरिटी, बिना कोलैटरल, बिना पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के आपको अपने आप लोन मिल जाता है एंड यू कैन इजिली रीपे दैट लोन इन 2-3 ईयर्स। मैंने अपने सीनियर से बात की है एक्सेल के and they said it's very very simple to repay the loan. It's not actually quite difficult. You can easily pay it in 2 to 3 years. So money is not that big of an issue जैसा मुझे लगता था कि यार मतलब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है, should I go for an MBA? ये बर्डन तो नहीं हो जाएगा ना? बट ट्रुथ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। So these three are the misconceptions I want to clear. Sakshi very well cleared all the basic misconception the students have in agriculture कि agriculture student का क्या हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा चीज क्लियर किया आपने। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला कि रेज्यूमे बिल्डअप के लिए एक्सपीरियंस, स्किल, इंटर्नशिप ये सब बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बहुत ही सही बात है कि आपको अपना रेज्यूमे बिल्डअप, ऊपर से अभी लॉकडाउन है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आप अपने स्किल्स एनहांस कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बात बताया। Thank you, Sakshi, for giving time. And on behalf of AgriWizard team, we would like to congratulate you once again and Thank you so very well wishes for your future career prospects. Thank you so much. Thank you so much.